بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی تجویز دے دی۔ وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت اور قلعدم ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تمام معاملات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے۔ کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوتے ہی لانگ مارچ اور دھرنے مؤخر کیے جائیں۔ حکومت بھی کمیشن کی کارروائی تک مزید سخت اقدامات سے گریز کرے۔ ہر کشمیری کی جان قیمتی ہے، مزید خون ریزی ہر صورت رکنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی بحران کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری حق ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ طاقت کے استعمال سے نہیں، مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان صفائیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاک فوج اور شہداء کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ افواج ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھتی ہیں۔ سیاست کرنا چاہیے پر لفظوں کا چناؤ مناسب ہو۔ فیلڈ مارشل کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ قیام امن میں پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب بولے، کشمیر کی صورتحال پر مکمل توجہ مرکوز ہے۔ پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں۔ کشمیر میں ہونے والی سیکیورٹی جوانوں کی شہادت پر دل رنجیدہ ہے۔ کوئی ریاست کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ بندوق اور دھرنے کے زور پر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ مہاجرین کے نمائندگان کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دریائے سندھ کے پانی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ مسلح اور پرتشدد جتھوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی اور قانون شکنی کرنے والے عناصر اپنے مذموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ قلعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے خواتین، معصوم بچوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو احتجاجی سرگرمیوں میں آگے لا کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں سے ہٹا کر احتجاج کا حصہ بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ قلعدم کمیٹی نے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو وتیرہ بنا لیا۔ کشمیر اور پاکستان کو کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد جموں کشمیر چودھری گفتار حسین کی نیوز کانفرنس۔ کہا کسی پرتشدد گروہ کو عوامی معاملات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قلعدم کمیٹی تحریک میں ناکامی کے باعث عوام کو برگلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوامی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ خواتین، معصوم بچوں، طلباء کو احتجاج میں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود کاشفی نے کہا کہ قلعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ کسی بھی مسلح جتھے کو ریاست کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں شدت۔ امریکی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکاروں سمیت 37 افراد شہید۔ امریکہ کی ایرانی شہر ہنگام، بمپور، بندر عباس، کیس، کشم، ہرمگزان اور سرک میں بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیستان میں امریکی فضائی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکار شہید۔ بمپور فوجی اڈے پر امریکی حملے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ جنوبی علاقوں پر امریکی بمباری میں 30 شہری شہید ہوئے۔ آج صبح امریکی حملوں میں بو شہر کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف حملوں کا ایک مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا امریکی افواج نے ایران کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ حملوں کا مقصد آبنائے ہرموز میں ایران کی حملہ آور صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔
ग्रेटर तनब जजीरे पर साहली दिफाही निज़ाम और क्रूज मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 7 तजारती जहाज़ों पर हमले किए। मुख्तलिफ ममालिक में शहरियों को भी निशाना बनाया। 10 से ज़ायद शहरी हलाक, ज़ख्मी या लापता हुए। अमरीकी फ़ौज का ईरान के खिलाफ नए हमलों का भी ऐलान। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़िज़ाई दिफाही निज़ाम फ़ाल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का अबनाए हरमुज़ पर मौसर कंट्रोल कायम है। अबनाए हरमुज़ में मुतादिद तेल बरदार जहाज़ों को हिदायत पर अमल न करने पर रोका गया और बाज़ पर फायरिंग की गई। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी तंसीबात निशाना। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। उर्दन के अर्ज़क अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इक़दाम का अपना हरमुज़ खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने कहा कि फौजी रिहायशी हेडक्वार्टर्स पर बुज़दिलाना हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुआहिदा वरना शदीद हमले। अमरीकी सदर की ईरान को खुली धमकी। कहा, मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने बेहतरीन मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। ईरान की तरफ से दागे गए तमाम मिसाइल मार गिराए। रवां हफ्ते ईरान पर मुख्तलिफ इकसाम के हमले किए जा सकते हैं। अबनाए हरमुज़ को खुला रखना चाहते हैं। अबनाए हरमुज़ में फ़ी साइड करना चाहता था, लेकिन इत्तेहादियों ने मना कर दिया। ईरान का अमरीका को सख्त इंतबाह। मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले जारहाना और गैर कानूनी हैं। अमरीका ने मुफाहमत की शराइत तोड़ी। जवाब देने के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। हमारी अफवाज के हाथ बंधे नहीं, जारहियत का ताकतवर जवाब दिया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर सूरत हाल के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। बहरीन का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीन ने ईरानी हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा, ईरान ने आज सुबह मिसाइल और ड्रोन हमले करके बहरीन की शहरी आबादी को टारगेट किया। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइवस्टॉक इनिशिएटिव साथियों को तासीन पेश करना चाहता हूँ। लाइफ स्टॉक के हवाले से जो काविशें की हैं वो यकीनन लायके तारीफ हैं, मगर ये एक लंबा सफ़र है। मिलकर हमें तय करना है, यानी वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर। अब हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। मेरिट पर समझौता हो रहा था। सिफारशी लोग चीन भिजवाए जा रहे थे। मैंने पूरे सिस्टम को स्क्रैप किया, थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई कि नौजवान चीन से क्या सीख कर आए हैं। 1000 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को मेरिट पर चीन भेजा गया। वज़ीर आज़म का मज़ीद 1000 बच्चों को चीन भिजवाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का लाइव स्टॉक की इस्तेदादकार के हवाले से कौमी सेमिनार से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से हमारी ज़राअत में इनकलाब आएगा। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी की वजह से हम खित्ते में लाइव स्टॉक के शोबे में पीछे हैं। लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफ़र तय करना है। ग्रीन
कॉरपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव की काविशें काबिल सताइश हैं। लाइव स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में मेहनत से काम किया जाए तो एक साल में मईशत बेहतर की जा सकती है। हमारा मुल्क दूध की पैदावार के हवाले से चौथे नंबर पर शुमार होता है। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारिज को फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शुबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शुबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुबान जारी रहेगा। पाकिस्तान की हिफाजत करने पर मामूर लोग जो हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल आपकी बात जो है मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। शुहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजल रहमान जैसा जय्यद आलम करे। हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। फजल रहमान का शोहदा से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना पूरी कौम से माफ़ी मांगें, क्या पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफवाज की बेतौकीरी नाकाबिल कबूल है। मौलाना की बातें किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सियासी जिद्दोजहद को किसी भी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। दहशतगर्द हमारे आइन को नहीं मानता और मुल्क पर हमले करता है, मासूम लोगों को शहीद करता है। उनसे बातचीत कैसे की जा सकती है? पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, फोर्सेस के जवान तनख्वाह लेने के लिए नहीं, हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम शोहदा को अपने माथे का झूमर समझते हैं, किसी को अपने शोहदा की तौहीन नहीं करने देंगे। शोहदा के अहले खाना से माफ़ी मांगता हूँ। उलमा कराम का कहना है कि इदारों पर सियासत करने का किसी को कोई हक नहीं। फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज की पुष्पनाही करने वालों का खात्मा ज़रूरी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, आज मिंबर और मस्जिद से सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम जाना चाहिए। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शोहदा के खिलाफ बयान के केस में मौलाना फजल रहमान अदालत तलब। गुजरावाला की अदालत में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की समाअत एडिशनल सेशन जज फैसल जमील ने फजल रहमान को 28 जुलाई को तलब किया। अदालत का पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुतराज़ बयान पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ लाहौर के सेशन अदालत में इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम पकड़ लिए। मुलजिमान को 36 घंटों के अंदर डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया गया। DIG साउथ असद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गिरफ्तार मुलजिमान में अनिल, रामचंद और सुरेश शामिल हैं। डिफेंस के इलाके में मशकूक गाड़ी का अलर्ट मौसूल हुआ था। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी को रोका तो असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान ने तफ्तीश के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया।